Yes. Good morning to all. Can you hear me? आवाज सुनाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Okay. So in the last period, we have seen transport number. We will take revision within 5 minutes. That is the fraction of total current carried by an ion is known as transport number. It is also called as transference number or Kirchhoff's number, and it is denoted by a symbol like small t, that is t plus, plus means here cation, transport number of cation, or t minus, transport number of anion, or tc, c means here cation, transport number of cation, and ta, a means here that is the anion, transport number of anion. And very important relation between transport number of cation and transport number of anion is that is Tc plus Ta, that is transport number of cation plus transport number of anion is equal to 1. And it is very important because one of the transport number of ion is given and we have to calculate the transport number of another ion. So very simple, we have to 1 minus, आपको उसमें से 1 माइनस करना है, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट नंबर दिया है 1 minus that transport number, that give the transport number of other ion. Now there are two methods for determination of transport number: moving boundary method and that is a Kirchhoff's method. So moving boundary method we have seen in the last period, that is this apparatus consists of a tube and 2 electrodes are fitted, one at the top, other at the bottom. Now at the bottom cadmium chloride solution is taken and from the top HCl solution is added. The electrode at the top is platinum wire which acts as cathode, while base electrode is metal rod acting as anode. Now working, consider the determination of transport number by H plus ion in HCl solution by for this purpose the lower part of cell is filled with electrolyte cadmium chloride, while the solution of known concentration is slowly added from the top. A clear boundary is visible at the junction of the two solution. A platinum wire in HCl solution acts as cathode, while cadmium stick in cadmium chloride solution acts as anode. And when current is passing, so clear boundary is obtained. The solution boundary move in upward direction. So we have to measure the distance between these two boundaries. And it can be calculated by using, that is A into dx. And the number of gram equivalent H plus ion migrated towards cathode can be calculated as V divided by 1000 into C, where V is nothing but A into E. A is the area of cross section and the distance traveled by two boundaries. E is concentration and here 1000. And finally, that is a transport number of H plus ion T plus divided by Q. Q is the quantity of electricity is equal to, that is the product of current in ampere into time. So finally we get A into D into C divided by 1000 into IT, where A area of cross the tube, D distance between two boundary, C concentration of solution, 1000 into I current in ampere, and T is time in. Putting this value, we can calculate the transport number of H plus ion, that is the cation. सर आपकी आवाज अटक रही है बीच बीच में. 1 minute. Connectivity problem है. Okay. जो साइंस है ना वो कर दो, म्यूट कर दो, आपका आवाज इधर आ रहा है.
आपके जो साउंड है उसको ये कर दो, म्यूट कर दो तो आवाज नहीं आएगा। आप लोगों के जो, हाँ अब आ रहा है क्या क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ भाई, आप लोगों के, आप जो है आप, और आ रहा है, देखिए आप लोगों का आवाज इधर मुझे आ रहा है, किसी का वो तो माइक आप ऑन है। ऑफ कीजिए, आप आपका म्यूट कीजिए, मतलब मेरा ही आवाज सुनाई, आप आपकी तरफ का आवाज इधर सुनाई नहीं देगा। हाँ, आप देखेंगे। So by adding, by putting the values, we can calculate the transport number of cation, that is H plus ion. अब anion का मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा? There is a relation between transport number of cation plus transport number of anion is equal to 1. तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन मालूम हो गया है, 1 माइनस जो भी होगा वो होगा, इट गिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, दैट इज विच इज आयनाइन हियर। एनायन कौन से हैं? कैटायन तो H प्लस है, एनायन Cl माइनस, H माइनस Cl Cl माइनस प्लस तो कैटायन है, Cl है क्योंकि Cl इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें H प्लस Cl माइनस, H प्लस कैटायन है और Cl माइनस एनायन है। अंडरस्टैंड? सो now the second method for determination of transport number is, that is by Hitrov's method. So what is the principle of Hitrov's method? So the method is based upon the principle that the fall in concentration around an electrode is proportional to the speed of the ion moving away from it. That is the principle. The method is based upon the principle that the fall in concentration, यानी concentration fall होता है, कम होता है, गिरता है, around electrode के अतराफ, is a proportional to, ये proportional होता है, किसके proportional है? Proportional to the speed of the moving ion, speed of the moving ion moving away from it, and it can be given as, that is transport number of gram equivalent lost from the anodic compartment divided by number of gram equivalent deposited in the voltmeter. So this is the formula for determination of, that is a transport number by Hitrov's method. Now next, that is experimental procedure. So this is the diagram for, that is determination of, that is Hitrov's method. So remember that here Hitrov's method consists of 3 chambers. 3 chambers हैं देखिए इसमें. This is one chamber and this is called as anodic chamber. This is called as anodic chamber. This is, here anode electrode is attached, so it is called as the anodic chamber. Now second chamber is called, that is cathodic chamber. Here cathode electrode is attached here. That is here cathode electrode is attached, so it is called, that is a cathodic chamber. And next is, that is, this is the third chamber, and this is called as, that is middle chamber या central chamber. ये center में, दोनों के center में है, दोनों के middle में है, इसलिए it is called as, that is the middle chamber, या some book में जो है central chamber भी नाम दिया गया है. Understand? So remember that, that is Hitrov's method consists of, that is 3 chamber. One is anodic chamber, second is cathodic chamber, and third one is the, that is a middle chamber. Now see, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसके जो चेम्बर, तीनों चेम्बर्स हैं, उसके नीचे आपको ये नजर आ रहा है, कॉक नजर आ रहा है, कॉक. This is one cock, this is another, and all these 3 chamber at the, that is a bottom contain कॉक. स्टॉप कॉक टाइट्रेशन जैसा होता है, टाइट्रेशन में जिस तरह से आप सोल्यूशन ये करते हैं और जब आपका एंड पॉइंट हो गया तो आप कॉक को जो है बंद करते हैं, उसी तरह के कॉक हैं. देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉक? टू विथड्रॉ द सॉल्यूशन. जब आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो इसमें से सॉल्यूशन निकालने के लिए ये जो स्टॉप कॉक है, 3 स्टॉप कॉक यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. अंडरस्टैंड? दैट इज गिवन इन द, दैट इज Hitrov's apparatus consists of 2 limb vessel. ये 2 वेसल हैं, that is these are the 2 vessel. Now connected by a narrow U tube in the middle. Connected by
नैरो यू ट्यूब, ये जो मिडल चेम्बर है ये यू ट्यूब है, यू की तरह जो है ट्यूब है, देखिए ये इंग्लिश लेटर यू, दिस मिडल चेम्बर, it is these two limbs, two tubes are connected with, that is the U tube. In the middle, both limbs as well as U tube are provided with stopcock at the bottom for the withdrawal of the solution. देखिए तीनों चेम्बर में क्या है, बॉटम में क्या है, स्टॉप कॉक है, ये वन, दिस इज ये मिडल का है, और ये दैट इज द कैथोडिक चेम्बर का जो है स्टॉप कॉक है. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टॉप कॉक? टू विड्रॉ द सॉल्यूशंस. इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे या लूज करेंगे तो वो उसमें से सॉल्यूशन रिमूव होगा, देन वी हैव टू फिट अगेन. फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन में जो ब्यूरेट में जिस तरह से नीचे होता है कॉक, स्टॉप कॉक, सेम कॉक यहाँ पर होता है. रिमेंबर दैट यू हैव यूज्ड द ब्यूरेट इन टाइट्रेशन. ब्यूरेट में आपने टाइट्रेशन यूज किया है, उसके नीचे जिस तरह से स्टॉप कॉक होता है सॉल्यूशन मिलाने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे तीनों जो चेम्बर्स हैं, एनोडिक चेम्बर, कैथोडिक चेम्बर और मिडल चेम्बर, तीनों में भी जो है दैट इज बॉटम में स्टॉप कॉक है टू विथड्रॉ द सॉल्यूशन. नाउ these are connected with, that is millimeter, colorimeter that contain copper sulfate solution, then and it is connected with AC and DC supply. Here millimeter बैटरी से कनेक्ट किया गया है. Now the two limbs are provided with platinum electrode. ये जो दो टू लिम है they are provided by platinum electrode. इसमें दो जो लिम है इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डी किए हैं. प्लैटिनम और समटाइम सिल्वर इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, बट यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किए हैं. सिल्वर या प्लैटिनम दोनों में से एक यूज करना है आपको. सो वी हैव यूज्ड हियर दैट इज सिल्वर इलेक्ट्रोड. Two limbs are provided with platinum or silver electrode to determine the transport number of Ag plus ion. To determine the transport number of Ag plus ion in AgNO3, the electrodes are either of platinum or pure silver. अभी बताया मैंने जो इलेक्ट्रोड हैं वो तो प्लैटिनम के चाहिए या तो प्योर सिल्वर के चाहिए. यहाँ पे हमने जो है सिल्वर के लिए है. So this is the experimental procedure. So I will repeat in short. Dopp's apparatus consists of two, that is a limb vessel connected by a narrow U tube in the middle. These are called as the, that is chambers. So first is the anodic chamber. Here anode is electrode is connected to this. Second is cathodic chamber to this, that is cathode is connected, and in the middle there is a narrow U tube and it acts as, that is the middle chamber. Both limbs as well as U tubes are provided with stopcock at the bottom for the withdrawal of the solution. दोनों लिम्ब में और मिडल चेम्बर में क्या है, at the bottom stopcock है to withdraw the solution. Now दोनों जो two limbs are provided with electrode, platinum or silver. Here silver electrode are used to determine the transport number of Ag plus ion in AgNO3. The electrodes are either platinum or pure Ag. यहाँ पे आपने इसमें क्या किया है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन इसमें फिल किया है, रिमेंबर दैट. और कॉलोमीटर है, कॉलोमीटर में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है. एंड two copper pieces are placed. Here also two electrodes are, that is attached. One is positive electrode, another is negative electrode, and that is connected with millimeter AC and DC converter. So this is the construction. Next, working. The apparatus is filled with standard solution of AgNO3, usually 0.1 normal solution. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम, आपको प्रैक्टिकल में होता है, लास्ट ईयर हमारे प्रैक्टिकल नहीं हुए थे. सो व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? आपको जब एमएससी वगैरह करेंगे तो ये सॉल्यूशन है, आपको बोलेंगे नहीं, आपको ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी क्या, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? इट इज जनरली रिलेटेड विद प्रैक्टिकल. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको
वहाँ यूज होगा ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा, जैसे कि आपको HCl और फॉर एग्जांपल HCl और NaOH का टाइट्रेशन कर रहे हैं आप, HCl और NaOH का, उसमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? वन इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड अनदर इज दैट इज किसे कहेंगे? पहले बताइए, फिर मैं दोनों सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बताऊंगा। सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए केमिस्ट्री में और प्रैक्टिकल में तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आपको बोलते ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको मालूम है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। रिमेंबर दैट, जो आगे MSc वगैरह कर रहे हैं ना, उनको लिए तो बहुत यूज होगा ये। वहां पे ये नॉर्मल है नहीं देते, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है बोलते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आप उसकी नॉर्मेलिटी मालूम है तो आपको पूछना चाहिए सर व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, आपको दी हुई रहती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन हुज नॉर्मेलिटी इज नोन, हुज नॉर्मेलिटी इज नोन, यानी जिसकी नॉर्मेलिटी आपको मालूम है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है, या प्रीवियस में देखिए, प्रीवियस में भी हमने इस्तेमाल किया HCl और दूसरा जो है सॉल्यूशन दो AgNO3। AgNO3 करेक्ट, Ag सिल्वर नाइट्रेट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है क्योंकि इसका नॉर्मेलिटी मालूम है। और मूविंग आपको आ सकता है देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो आपका एक अगर एग्जाम हुआ तो इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता 10 मार्क के लिए डायग्राम बनाने करने। लेकिन AgNO3 की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी है ऐसा आपको, या विच इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन ट्रॉप्स मेथड, या विच इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन मूविंग बाउंड्री मेथड। ठीक है, ये तो मालूम है आपको। मूविंग बाउंड्री में भी हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है, कौन सा है बताइए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कल देखे थे हमने, अभी सुबह में भी, अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग में भी जो है आपको आ सकता है क्वेश्चन, देखिए इसलिए मैं ये ले रहा हूं। ये मूविंग बाउंड्री मेथड में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है, देखिए कैडमियम क्लोराइड है और HCl है, तो इसमें कौन सा है? दो सॉल्यूशन है इसमें, एक HCl है और एक कैडमियम क्लोराइड है मूविंग बाउंड्री में। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है इसमें? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अभी इसमें दिया हुआ है, देखिए नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी HCl की 0.1 दी हुई है यहाँ पे, देखिए कल बताए थे हमने 0.1 नॉर्मल HCl है 0.1, यानी HCl जो सॉल्यूशन है वो स्टैंडर्ड है। रिमेंबर दैट मूविंग बाउंड्री में, मूविंग बाउंड्री मेथड में क्या है HCl सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको मालूम है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने 11 का टाइट्रेशन लिया था NaOH और HCl। फॉर एग्जांपल HCl की नॉर्मेलिटी दी हुई है तो HCl क्या हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, और NaOH क्या हो गया अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन यानी नाम मालूम है उसको लेकिन उसकी नॉर्मेलिटी मालूम नहीं है, आपको मालूम करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज द, दो सॉल्यूशन होते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक अननोन सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी मालूम है, और अननोन सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी मालूम नहीं है आपको मालूम करना है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंड अननोन सॉल्यूशन। रिमेंबर दैट ये प्रैक्टिकल वर्ड है और आपको यूज होंगे, आप MSc वगैरह जब करेंगे तो वहां पे ये यूज होते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वगैरह। आपको वाइवा में पूछते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है, आपने टाइट्रेशन किया और टाइट्रेशन तो कोई भी करता है, 10 ml ये लेते हैं ब्यूरेट्स डालते हैं फिनोल्फथालीन पिंक कलर आ गया ठीक है बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपको बाहर से एग्जामिनर पहले आते थे तो कि इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है, आपने टाइट्रेशन तो किए तो आपको बताना आना चाहिए कि स्टैंडर्ड है जिसकी ना आपको देते हैं कि एमएस देते हैं आपको अपेरेटस में लिखा कर प्रोसीजर वगैरह के ये इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है, जिसकी नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है, जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको दी हुई है वो सॉल्यूशन होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। रिमेंबर दैट। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी क्या, जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको मालूम है उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको मालूम नहीं है दैट इज अननोन सॉल्यूशन, unknown solution whose normality is to be determined. So let us come to the point. The apparatus is filled with standard solution of AgNO3. AgNO3 ब्रैकेट में दिया गया है यूजुअली 0.1 नॉर्मल। वहां पे भी देखिए जो मूविंग बाउंड्री मेथड है वहां पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन HCl है और उसकी नॉर्मेलिटी भी जनरली हमने 0.1 ही लिए हैं।
मतलब प्रैक्टिकल में एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 0.1 है। एंड द सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट लाइक बैटरी, ये बताया गया है, दैट इज सोर्स इज कनेक्टेड विथ, दैट इज द डायरेक्ट करंट ऑफ बैटरी, मिलीमीटर एंड बैटरी से कनेक्ट किया गया है। आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस, जब उसमें से करंट पास करेंगे आपको जब इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट takes place. After the electrolysis, the solution from the anodic as well as central compartment are withdrawn separately by opening the stop cock at the bottom and analyzed by titration with standard ammonium thiocyanate solution. देखिए standard ammonium thiocyanate solution. After the electrolysis, the solution from anodic as well as central compartment are withdrawn. जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये सॉल्यूशन आपको विड्रॉ करना है इसमें से, ये जो ग्लास ट्यूब है या लिम्ब है इसमें से आपको सॉल्यूशन विड्रॉ करना है। कब विड्रॉ करना है, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, उसका करंट पास होंगे इसमें से, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन एक बीकर में एनोडिक चेंबर में से सॉल्यूशन क्या करना है, इसे ओपन करना है, ये स्टॉप कॉक और सॉल्यूशन निकालना है। सिमिलरली वी हैव टू विड्रॉ द सॉल्यूशन फ्रॉम कैथोडिक चेंबर, ये दूसरे बीकर में ये निकालना है। After the electrolysis, the solution from anodic as well as central compartment are withdrawn. देखिए कहाँ से निकालना है आपको सॉल्यूशन, एनोडिक और सेंट्रल से निकालना है, विड्रॉन सेपरेटली, सेपरेट बीकर में निकालना है बाय ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक, यानी आपको पहले करंट पास करना है। करंट पास करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसका। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद एनोडिक एज वेल एज सेंट्रल कंपार्टमेंट से सॉल्यूशन आपको विड्रॉ करना है बाय ओपनिंग स्टॉप कॉक्स एट द बॉटम एंड उसका टाइट्रेशन करना है। ब्यूरेट में क्या करना है आपको, सोडियम अमोनियम थायोसाइनेट लेना है, अमोनियम थायोसाइनेट। देखिए बाय टाइट्रेशन विथ स्टैंडर्ड अमोनियम थायोसाइनेट NH4CnS थायोसाइनेट। देखिए अमोनियम यानी NH4 और थायो यानी थायो ग्रुप यानी सल्फर रहेगा और साइनेट यानी CnS। सो अमोनियम थायोसाइनेट। साइनाइड, व्हाट इज साइनाइड का फॉर्मूला क्या है, सारा साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड या सोडियम साइनाइड, एस हाइड्रोजन साइनाइड यानी खाली साइनाइड, CYANID, ये साइनेट है। देखिए डिफरेंस इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनेट एंड साइनाइड। साइनाइड यानी खाली CN, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, सोडियम साइनाइड NaCN, पोटेशियम साइनाइड KCN। ये साइनाइड है, CYANIDE साइनाइड। और यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, साइनेट, CYANATE, और वो थायोसाइनेट, अमोनियम थायोसाइनेट NH4CnS, दैट इज द अमोनियम थायोसाइनेट। जो सॉल्यूशन आपने विड्रॉ किए हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम एनोडिक एज वेल एज सेंट्रल और मिडल चेंबर, वी हैव टू टाइट्रेट it against standard solution of ammonium thiocyanate NH4CnS solution. The change in amount of electrolyte in the anode compartment is thus obtained. The change in amount of electrolyte in the anode compartment is thus obtained. यानी इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो उसका जो अमाउंट है, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है एनोड में क्या होगा, चेंज होगा। The amount of solution withdraw from anode for analysis should include all the solution. The amount of solution withdrawn from anode for analysis should include all the solution. यानी एनोड्स चेंबर से आपने जो सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस विड्रॉ किया है उसमें सभी सॉल्यूशन प्रेजेंट है। Whose composition has changed, सिर्फ composition change होता है because of the electrolysis. This can be checked by withdrawing a further portion of solution from the anode limb and finding whether it has same composition as the original AgNO3 solution or not. आपको चेक करना है, this can be checked by withdrawing a further portion of solution from anode limb and finding whether it has the same composition as the original AgNO3 solution or not. Thus the solution left after
withdrawal from it must be of starting or initial concentration, यानी ऊपर का जो सॉल्यूशन रहेगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका 0.1 नॉर्मल रहेगा और इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज चेंज होगा. सो दिस इज अबाउट द Hittrop's method. This is the principle, then experimental procedure, diagram and working. So somewhat complicated is there. डायग्राम भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको टाइम लगेगा आपको बनाने के लिए. 10 मार्क का क्वेश्चन आता था, लेकिन आपका भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, इसमें नॉर्मेलिटी, कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन हिटॉप्स मेथड, ऐसा आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है. 3 चेंबर्स हैं, आप उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, सिल्वर, प्लैटिनम, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ दिस. तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिटॉप्स में, इन हिटॉप्स मेथड द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ डैश, सिल्वर, प्लैटिनम, बोथ और नन. तो उसमें आपको आंसर रहेगा बोथ रहेगा. इट कैन बी प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं और सिल्वर भी यूज कर सकते हैं. So this is about that is Hittop's method. So only one bit from this topic is remains. हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, अगले पीरियड में देखेंगे हम. So next bit is conductometric titration. Conductometric titration. So this bit we will be discuss in the next period. अगले पीरियड में हम ये देखेंगे conductometric titration. और 1-2 पीरियड में हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, हमें प्रॉब्लम्स लेना है इस टॉपिक के, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव भी लेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके लेंगे. तो 1-2-3 पीरियड में ये टॉपिक जो है हमारा पहला टॉपिक, बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीट होगा. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वी विल, दिस इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस, दैट इज थोड़ा सा बड़ा है ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रास टाइप्स वगैरह भी हैं इसके, तो ये हम कल देखेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके एडवांटेजेस भी है. सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पीरियड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन. 1 से 2 पीरियड में हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा. इफ एनी डिफिकल्टी इज देयर देन आस्क. Okay, we will stop. I'm